Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. Childhood vaccines are vital for public health, preventing diseases like measles, polio, and whooping cough. They not only boost individual immunity, but also contribute to herd immunity. Vaccination significantly reduces illness and death rate, promoting healthier future generations. Hence, understanding the importance of childhood vaccines highlight their role in eradicating preventable diseases and ensuring global health. Welcome everyone. I'm Dr. Soumya Saluja from SIP Media. और बच्चों में टीकाकरण की आवश्यक भूमिका को समझने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन ठक्कर हैं. Dr. Naveen Thakkar is a distinguished pediatrician and a prominent figure in the field of child health. He is the director of the Deep Children Hospital and Research Center in Gandhidham, Kutch, Gujarat, India. He is the president of the International Pediatric Association for the years 2023-25. He is a member of organizations like the River EU Advisory Board and an executive committee representative to the PMNCH board. He is currently scientific committee member of the ADVAC and vice chair of the steering committee of the International Collaboration on Advanced Vaccinology Training. Sir's current interest is in the area of vaccine hesitancy. He is leading the IPA Vaccine Trust Project. He also served as a steering committee member of the Immunization Partners of Asia Pacific from 2017 to 19. Sir is listed among the top influencers in the fight against polio by UNICEF on World Polio Day 2017. Sir's accolades include the Outstanding Asian Pediatrician Award 2012, the Rotary International Regional Award for Polio Free World 2010, the Rotary Ratna Award District 3050 2010, and the prestigious FIAP Award. Sir's contributions to pediatric healthcare extend beyond clinical practice. He is deeply involved in research and policy advocacy. He has played a crucial role in polio eradication efforts in India and has been an advisor to numerous health committees, including the Polio Eradication Committee of the Indian Academy of Pediatrics. Additionally, he has co-investigated significant projects like the IAP Emory NPSP project on the knowledge, attitudes, and practices of immunization providers in India. Dr. Thakkar's dedication to improving child health globally has made him a respected leader and advocate in pediatrics, influencing health policies and practices worldwide. तो आइए डॉक्टर नवीन ठक्कर से समझते हैं बाल चिकित्सा टीकाकरण का महत्व. Dr. Naveen Thakkar, SIP Media welcomes you, sir. Thank you so much for joining us today, sir. Sir, we all understand that prevention is better than cure. बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है. But in spite of that, बहुत सारे माता पिता रहते हैं जिनको अभी भी वैक्सीन से थोड़ा डर लगता है, उनके जहन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं. So, just to bridge this gap up, I'll begin this discussion with the most fundamental question: what are vaccines and how well or how do they work to protect children from infectious diseases? गुड. सो आपका क्वेश्चन बिल्कुल रिलेवेंट है. तो पहली चीज तो ये है कि कोई भी खासकर जब इंजेक्टेबल होता है तो माता पिता उससे डरते हैं. और वैक्सीन के बारे में तो कई मिस इन्फॉर्मेशन, कई तरह के दुष्प्रचार चलते रहते हैं. इसलिए वो कई पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए उनको कंसर्न होता है. पूरी वैक्सीन, हर वैक्सीन के लिए तो ऐसे बहुत कम लोग हैं. तो वैक्सीन सदी की सबसे बड़ी सैनिटेशन के बाद पब्लिक हेल्थ एक वो विक्ट्री है, एक अचीवमेंट है. क्योंकि इसलिए हम अगर देखें कि इतने सालों में जो तरक्की हुई है वो एक सैनिटेशन में हुई है. उसके कारण हम जैसे मैं बोलता हूं कि पहले आप किसी को भी पूछेंगे
तो जी बताएंगे कि 5 बच्चे थे, 6 बच्चे थे, उसमें 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जैसे हर घर में हिस्ट्री ऐसी मिलती थी। और जी मोस्टली ये सब वैक्स जो इन्फेक्शियस डिजीजेस थे, उसके जी कारण भी एक बहुत बड़ा कारण था, जो बाल मृत्यु दर बहुत हाई था। जी अभी जो है इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी काफी घट के काफी नीचे आ गया है। और उसमें सैनिटेशन के साथ दूसरा बहुत बड़ा रोल वैक्सीन का है। तो जी वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक 200 साल से सालों से चली आ रही है। तो वैक्सीन वैक्सीन जो होती है कई तरह से बनाई जाती है। वो जी एक तरह से वो एक मैसेज बॉडी को भेजा जाता है। अब वो जी कई तरह की वैक्सीन होती हैं कि वायरस या बैक्टीरिया को निष्क्रिय करके भी भेजा जाता है, या कि उसका कोई उसका पार्ट भेजा जाता है। तो एक इंजेक्शन या उसके द्वारा वो बॉडी में भेजा जाता है, और जी उसके खिलाफ जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी डेवलप करती है। जी तो जब भी मतलब एक तरह से ये एक रिहर्सल है कि बॉडी को तैयार रहती है कि अब इस तरह का कोई इन्फेक्शन आया हो, जैसे उस तरह जी की बीमारी आई, तो फौज तैयार है उसको अटैक करने के लिए। जी तो एंड तो इस तरह से मतलब एक बॉडी को तैयार किया जाता है दुश्मन को पहचानने के लिए। जो बीमारियां हैं जिसकी वैक्सीन हम देते हैं, उन बीमारियों का उसको एकदम कम मात्रा में, या उसमें उसका कोई ऐसा एंटीजन जिसको बॉडी पहचानती है, पहचान जी ले। और उसके बाद जब उसके खिलाफ फौज तैयार रहे, और जैसे ही वो जो वो बैक्टीरिया वायरस अटैक करेगा, तो वो जी फौज को निपट सकती है। अगर पहले से नहीं पहचाना होगा तो टाइम लगता है। तो वो जी एक वैक्सीन सरल भाषा में एक मतलब ऐसा सब्सटेंस है, एक एंटीजन है जो बॉडी में दिया जाता है, और उसके खिलाफ बॉडी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी डेवलप करती है, बॉडी को उस बीमारी से से रक्षा देने के लिए तैयार करती जी अभी जैसे आपने बोला कि वैक्सीन हमारे शरीर को पहले से ही एक इन्फेक्शन के लिए तैयार कर देती हैं। है। तो इसी से मिलता जुलता मेरा अगला सवाल यही होगा कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू रिसीव वैक्सीन्स अकॉर्डिंग टू अ recommended vaccination schedule? देखिए, क्योंकि हर हर जैसे कई बीमारियां होती हैं, जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, तो वो जी न्यूबॉर्न जो होता है वो मोस्टली उसको जो थोड़ा बहुत जो मिलता है माँ से, जी एंटीबॉडी जो तैयार मिलती हैं, वो उसकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है। मतलब जी बहुत वीक होती है। जो भी मिलता है माँ से मिला हुआ है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब जी जैसे मैंने बोला कि हम वैक्सीन के रूप में एक उसको बॉडी को तैयार करते हैं, वैसे नेचुरल इन्फेक्शन भी लगते रहते हैं जो बॉडी को तैयार करते हैं। जी बॉडी को तैयार करते हैं, लेकिन अगर बड़ा इन्फेक्शन लगा तो बीमारी हो जाती है। तो जी अब वो बच्चा जो पैदा होता है उसके में कोई ऐसी रोग प्रतिकारक शक्ति या इम्यूनिटी है नहीं। जी उसको उसको हम उसको उस उम्र की जो बीमारियां हैं, हम्म, उस 1 साल से कम की हैं, 6 महीने से, 1 साल से कम के हैं, 2 साल से कम की हैं, उसके हिसाब से हम उसको वैक्सीन देते हैं। और वैक्सीन कितने डोज में देना वो सब रिसर्च से तय होता है, कितनी बार देना। फिर उसको बूस्टिंग की जाती है, मतलब बाद में उसका असर कम हो रहा हो तो। अब जी अगर हम वो समय से नहीं देंगे, वो जी समय से नहीं देंगे तो वो पूरा असर नहीं करेगी। वैसे जी एक चीज है कि इसका दूसरा पहलू भी है। हम जी कई बार बोलते हैं कि हमने वैक्सीन लिया और फिर हमारा गैप आ गया, तो अब हम क्या करें, फिर से शुरू करें क्या? तो जी आंसर है नहीं। बॉडी नेवर फॉरगेट्स, बॉडी कभी भूलती नहीं है। अगर जी आपने पहले दिया है, और अगर आपका किसी कारण से रह गया है, तो भी आपने जहां भी छोड़ा वहीं से शुरू मतलब वो शुरू हो वहीं से जाएगा। शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोनों चीज है। एक तो समय के अनुसार लेना जरूरी है, क्योंकि जी आपको अगर पूरे डोज मतलब नहीं लगेंगे तो आपको पूरी तरह रक्षण नहीं मिलेगा। जी और एक वो रहेगा कि भाई मैंने तो लिया है। तो हाँ जी इसलिए ये जरूरी है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वैक्सीन्स और दूसरे इन्फेक्शन कुछ जो थोड़े थोड़े लगते रहते हैं, पूरा इतने हैवी नहीं कि बीमारी कर सकें, उसके कारण बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है। और कई बीमारियां जो बच्चों में होती है वो बड़ों में जी नहीं होती है। तो उनको जी जो अपनी उम्र के अपने जो आपको बीमारियों से खतरा है उसी हिसाब से वैक्सीन दी जाती। तो समय से एंड लेना बहुत जरूरी है।
अगर कोई कारण से लेट हो गया तो आप ले सकते हो, पर कंप्लीट जरूर करना है। जी। तो ऐसी कोई कॉमन वैक्सीन जो बच्चों में सबसे ज्यादा लगवाई जानी चाहिए या माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि इनसे तो बचाव जरूरी ही है, ऐसी कौन सी वैक्सीन है सर? ऐसा ऐसा तो देखिए, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सब बीमारियां खतरनाक हैं। जी। अभी जन्म के समय बीसीजी दी जाती है, जी। ठीक है, ओरल पोलियो पिलाया जाता है, हेपेटाइटिस बी जी। भी कुछ जगह मतलब इंस्टीट्यूशन में है तो देते हैं। बीसीजी जी। टीबी से बचाने के लिए है, तो टीबी जी। से भी समझना है कि बीसीजी टीबी बीमारी से नहीं बचाती, पर टीबी के जो खराब तरह की टीबी होती है उससे बचाती। फिर जी। 1.5 महीने में हम पेंटावेलेंट देते हैं। जी। पेंटावेलेंट में 5 बीमारियां, पांचों एक खतरनाक है। टिटनस यानी धनुर, जी। डिप्थीरिया यानी गलाघोटू, है ना। जी। फिर उसके बाद whooping कफ यानी बड़ी कुकुर खांसी। जी। फिर उसके बाद हिब है, जो मेनिंजाइटिस और निमोनिया करती है। जी। और हेपेटाइटिस बी है, जो एक लीवर का वो करती है, और आगे जाके उसमें लिवर कैंसर, सिरोसिस और ये सब भी होता है। तो जी। पांचों पेंटावेलेंट भी बहुत जरूरी है। साथ में पोलियो की डोज लगता है, जी। न्यूमोकॉकल का लगता है। न्यूमोकॉकल भी निमोनिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हेब और न्यूमो दो ही बड़े कारण हैं। अब हम लोग जी। पहले इतना ढेरों केस देखते थे मेनिंजाइटिस के, निमोकॉकल मेनिंजाइटिस से भी बचाता है। मैंने जी। 100 100 200 300 केस हम लोगों ने, मैंने अकेले ट्रीट किए होंगे मेनिंजाइटिस के। और जी। उसके बाद उनमें कई बच्चों में तो वो रह जाता था, मतलब असर रह जाता था। अब जी। मेरे को हार्डली कोई केस देखने मिलता है, तो ये क्या हुआ है? वो सैनिटेशन से न्यूमोकॉकल तो नहीं सुधरता। तो ये जी। वैक्सीन जो इतने बड़े पैमाने पर लग रहा है उसका है। हमको जी। याद है, हम जब मेडिकल कॉलेज में थे तो एक टिटनस वार्ड होता था, जो पूरा जी। भरा होता था। जी। पूरा भरा होता था। हम जब हाउस जॉब में थे और वो वेन लेना चालू करते थे, एक सिरे से चालू किया, और उस जी। समय तो वेन फ्लो वगैरह छे नहीं, तो जब लास्ट पेशेंट पे पहुंचे तो पहले का आउट हो जाता था। और बच्चे जी। एकदम उनको झटके आते रहते थे, तो बड़ा बड़ा ही वो रहता था। अब हमको जी। नियोनेटल टिटेनस देखने नहीं मिलता। डिप्थीरिया हम्म। कभी कभी यहाँ वहां देखने मिल जाता है, मेनिंजाइटिस बहुत कम देखने मिलता है। तो जी। ऐसे में हुपिंग कफ भी बहुत ही कम देखने मिलता है। तो ये जितनी बीमारियां हैं, जी। निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ये सब जानलेवा बीमारियां हैं। फिर जी। मीजल्स की वैक्सीन लगती है 9 महीने में। जी। 6 महीने के बाद टाइफाइड की प्राइवेट सेक्टर में लगती है। तो जी। हर वैक्सीन जरूरी है। कम से कम आपको जो सरकार में जो वैक्सीन दी जाती है, करीब जी। करीब सब वैक्सीन, रोटा वायरस की दी जाती है। रोटा वायरस का डायरिया बड़ा। अब मैं वही बताऊं कि जब हमने प्रैक्टिस चालू किया था तो भरे रहते थे मतलब क्या बोलते हैं, डायरिया के केस। और एक जी। इतने सारे मतलब वो थे। अब आजकल बहुत ही कम हो गया है। तो जी। ये जो चमत्कार है, ये कोई ऐसे नहीं हुआ है कि सिर्फ सैनिटेशन से हुआ, क्योंकि जी। रोटा वायरस तो सबको असर करता है। जी। तो ये सब काफी कुछ इसमें हद है कि वैक्सीन का फायदा है। दूसरी जी। चीज एक होती है कि अगर काफी लोगों को वैक्सीन दे दी जाए तो उसका एक हर्ड इफेक्ट भी होता है, कि जिनको ओके। वैक्सीन नहीं लगी है उनको भी जी। फायदा मिलता है। जी। अब आपने बच्चों को वैक्सीन दे दिया तो बड़ों को भी न्यूमोकोकल होने का चांस कम रहता है, क्योंकि बच्चों से इन्फेक्शन लगता है। तो जी। वैक्सीन तो एक सबसे बड़ा हमारे लिए इस सदी का वो है, एक गिफ्ट है जो अब सरकार दे रही है, अवेलेबल है। पहले जी। तो इतनी महंगी होती थी कि लोग ले नहीं पाते थे हर एक वैक्सीन। जी सर। अब जैसे आपने बोला कि खाली सिर्फ बच्चों को ही नहीं, वैक्सीन जो है वो हर्ड इम्यूनिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर फिर भी क्या वैक्सीन से रिलेटेड कोई रिस्क्स हैं या साइड इफेक्ट्स हैं जिनके लिए हेल्थ अथॉरिटीज भी थोड़ा सा कॉशियस रहती हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, एक बात हमको समझ लेना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी, देयर इज नथिंग 100% सेफ। जी। क्रॉसिंग द रोड इज नॉट 100% सेफ। जी। गोइंग इन फ्लाइंग इन एरोप्लेन इज नॉट 100% सेफ। जी। तो कुछ भी 100% सेफ नहीं है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए। अब जी। जैसे 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 आपने बोला, आप अगर बाय द वे, आप लोग हम सब लोग दवाएं खाते हैं। जी। जब बीमार पड़ते हैं दवाएं खाते हैं, डॉक्टर ने लिखा, जाके ले आए, खा लिया। अगर आप जी। उसके अंदर जो लीफलेट आती है उसको निकाल के बाहर अगर पढ़िए, जी।
तो उसमें इतने सारे साइड इफेक्ट रहते हैं कि अगर आप मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनको जी बताना जरूरी है, रेयर हो। अगर आप वो जी, पढ़ लें तो आपको लगेगा मेरे को तो दवा खानी नहीं है। नहीं चाहिए, सही बात है। लेकिन वैक्सीन एक ऐसी चीज है, क्योंकि दवाएं हम देते हैं बीमार आदमी को, तो उसको जी तो है कि मेरे को तो खाना ही है, नहीं तो मेरे में बीमारी से तकलीफ होगी। जी लेकिन बट वैक्सीन दी जाती है हेल्दी इंडिविजुअल को, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको दी जाती है। तो जी उसमें जीरो टॉलरेंस होता है लोगों का कि भाई हमको तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जी मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट जो हैं वो माइनर होते हैं। जी बुखार है, जहां पे लगा है वहां थोड़ा दर्द हो रहा है, और इस तरह के थोड़े से माइनर साइड इफेक्ट होते हैं, जिनके जी। बारे में मोस्टली बुखार की दवा साथ में दी जाती है, और हम्म। 1-2 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता ओके। है। अब कई वैक्सीन के कुछ ऐसे रेयर साइड इफेक्ट भी होते हैं, जो जी जब वैक्सीन डेवलप की जाती है तब वो पहले 10-15 लोगों को दी जाती है, फिर 50-100 लोगों को दी जाती है, फिर कुछ दो जी। चार हजार को दी जाती है। इसलिए जो कोई बहुत रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, जो बहुत हाँ जी। बहुत ही कम होते हैं, वो जब वैक्सीन लाई जाती है मार्केट में, तो तब तक ये हो जाता है कि भाई बाय एंड लार्ज जी ज्यादातर तरीके से ये वैक्सीन सेफ है, क्योंकि अब हजारों लोगों को दी जा चुकी। जी लेकिन फिर भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो जो लाखों में करोड़ों में एक होता हो, तो वो जी तुरंत नहीं आएगा। जैसे अभी जी हमने कोविड में अभी चल रहा था कि वो ब्लड क्लॉट क्या वो हो जाता है ऐसा, तो अब वो जी बाद में पता चला और उसको सबको बता दिया जाता है जैसे भी होता है। इसलिए इसके लिए पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है, कि जी बोला जाता है लोगों को कि आपको कोई भी हो तो आप रिपोर्ट करें। जी तो जो भी वैक्सीन मार्केट की जाती है वो मोस्टली उसको उसकी असरकारिता, वो भी कोई भी जी वैक्सीन 100% असरकारक नहीं होती। जी इसी तरह 100% सेफ भी नहीं होती है, लेकिन जो होता है वो लिखा होता है। और जी आप बताया जरूर जाना चाहिए, और उसके लिए एक AEFI, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एक पूरा जी सिस्टम बना हुआ है। जी उसमें आपको जहां भी वैक्सीन लगी है, आपको कुछ भी लगता है, जी अगर नहीं है उसके कारण भी, तो जी आपको रिपोर्ट करना है। उसकी पूरी मैकेनिज्म है कि जी जहां आप वैक्सीन लोगे वो आपको बताएंगे, और उसके जी ऊपर तुरंत एक्शन होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होता है। मतलब बड़ा थॉरो काम होता है देखने के लिए कि भाई वैक्सीन के कारण है, कि डर के कारण हो गया, कि और कोई कारण है, कोइंसिडेंटल है। तो मतलब ये पूरा सिस्टम प्लेस में है। आपको आपको सिर्फ इतना करना है, जहां आपने वैक्सीन लिया है वहां बताना है। पर जी जहां तक आप ये समझ लीजिए कि जो भी वैक्सीन लाई जाती है, उसके कई चरणों में, उसको फेज बोलते हैं, फेज 1, फेज 2, 2A 2B, फेज 3। जी फेज 3 तक उसके हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स होते हैं, जो वॉलंटियर करते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमको दीजिए और हम इसके लिए तैयार हैं। उनमें जी वो टेस्ट करने के बाद पूरा जो है, वो जहां बनती है वैक्सीन, उसकी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है कि नहीं, वो GMP बोलते हैं, उसका वो वहां है कि नहीं, उन सबको देख के ही फिर वैक्सीन लाइसेंस की जाती है। ऐसे जी आसान नहीं होता है कि कोई भी ऐसे कोई चूरन है कि बेच दिया लोगों ने। ये तो वैक्सीन है जिसके लिए पूरा बहुत मेटिकुलस सिस्टम होता है। फिर भी जी अगर कोई साइड इफेक्ट, रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, वो तो जी आपको रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले। पर ऐसा होता कम है, पर हो सकता है। इसलिए हम ये कभी भी हमको जो हम वैक्सीन देते हैं, हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि 100% सेफ है, कुछ नहीं होगा, ये जी कहना गलत है। इसीलिए उसके कारण ही अभी आजकल चला है ये पेनलेस वाला लगा दीजिए। अब वो ऐसा जी पेनलेस जैसा कुछ नहीं होता है, पेन कम वाले ऐसे कुछ प्रोडक्ट एक ही वैक्सीन का होता है, लेकिन उसका हम्म, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें पेन नहीं है। तो जो भी जी वैक्सीन आपको मिलती है, सरकार से भी मिलती है, बहुत अच्छी कंपनी की मिलती है, बहुत ही सब देख के ध्यान में रखा जाता है। कोल्ड चेन मेंटेनेंस होता है उसका, वो ध्यान रखा जाता है, और इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम सब है कि उसमें कहीं भी वो जो उसकी शीत श्रृंखला या कोल्ड चेन है, उसमें ब्रीच हो तो सीधे सिग्नल जाता है उनके जो कंट्रोल रूम में है, और उनको पता चल जाता है कि भाई ये टेम्परेचर यहाँ गड़बड़ हुआ। इतना जी अच्छा इतना अच्छा पूरा बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि सरकार जानती है, हम लोग जानते हैं कि बच्चे जिनको वैक्सीन दी जाती है वो स्वस्थ बच्चे हैं। इसलिए जी उनके माँ बाप का यही रहेगा कि भाई कुछ नहीं था, ये बुखार क्यों हो गया। तो जो साइड इफेक्ट है उनके बारे में बताना,
और कोई हाँ भी जी। तकलीफ हो तो रिपोर्ट करना। जी। सो क्लियरली जो वैक्सीन के बेनिफिट्स हैं वो उसके साइड इफेक्ट से ज्यादा है, इसीलिए वैक्सीन लगवाना छोटे बच्चों के लिए खासकर जरूरी है। अ, बहुत ज्यादा, जैस ऐसा नहीं है जी। कि ज्यादा है मतलब कि 5% ज्यादा है। ठीक। रिस्क तो कमी है बहुत, क्योंकि अभी तो ये जी। जो बाकी वैक्सीन है वो तो कितने सालों से चल रही है ना। नई वैक्सीन में थोड़ा वो रहता है, इसमें तो जी। करोड़ों में भी क्या होता है साइड इफेक्ट हमको मालूम है। और जी। जो भी वैक्सीन बहुत समय से चल रही है वो सेफ है, जी। लेकिन रिलेट मतलब बाय एंड लार्ज सेफ। इट्स जी, बाय नॉट एंड लार्ज सेफ है। 100% सेफ, बाय एंड लार्ज सेफ। बाय एंड लार्ज सेफ है। अब जैसे आपने बोला कि वैक्सीन जनरली पेरेंट्स इसीलिए थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं बिकॉज उसमें बच्चों को उनको डर लगता है कि शायद दर्द हो सकती है। सो डू पेरेंट्स एंड डॉक्टर्स हैव अ रोल टू प्ले इन रिड्यूसिंग वैक्सीन इंड्यूस्ड एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट? हाँ बिल्कुल होना चाहिए एक्चुअली। बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन लोग कर रहे हैं। अभी आप कई जी। व्हाट्सएप में वीडियो चलते रहते हैं कि डॉक्टर ने वो गाना गा के और ये लगा रखा जी। है, कुछ खिलौने दे रहे हैं। तो जरूर जी। से इसके ऊपर बहुत काम अब नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा मतलब पहले वो नहीं सोचा गया। अब ये मानते हैं कि पेन मिटिगेशन का जो है और जी। ये एंजाइटी कम करने के लिए माहौल जो है, अभी कई जगह बने हैं मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर, यूपी बिहार और सब जगह कई जगह बने हैं, जो वहां आप जी। जाओ तो आपको लगे ही नहीं लगेगा प्ले हाउस में आ गए। तो ओके। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और डॉक्टर को थोड़ा इस तरह से वो करना चाहिए कि जिससे बच्चा थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट हो, थोड़ा जी। खेलते हुए कुछ वो करते हुए। और जी। बहुत जरूरी है, और उसके तरीके हैं, किया जा सकता है। अब जैसे हमने अभी वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में भी बात करी है, सो आप उस पर थोड़ी सी और रोशनी डालें कि इंडिया में अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों है, और अगर क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अपनी फर्स्ट डोज मिस कर दें। जैसे मीजल्स की कुछ पेरेंट्स अगर हेजिटेंट हैं, रिलक्टेंट हैं, तो बच्चे को दिलवाएं नहीं। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और क्या किस तरह से ये हमारे वैक्सीनेशन रेट्स को अफेक्ट कर सकता है? देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ना वो एक स्पेक्ट्रम है। जी। एक ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ है। एक तो ज्यादातर लोग हैं वो वैक्सीन लेते हैं क्योंकि सब जी। लोग ले रहे हैं तो हमको लेना है, जिसको हम जी। सोशल कॉपिंग बोलते हैं, पैसिव जी। एक्सेप्टेंस है। ये सब ले रहे जी। हैं, लेना है। और जब तक कोई जी। प्रॉब्लम नहीं होती वो लेते रहते हैं। वो एक वो जी। मालूम है हर एक को कि भाई 1.5 महीना हो गया मेरे बच्चे को, अब उसको जाना है, मेरे को वैक्सीन लेना है। बगल पड़ोसी भी जी। गया था, वो भी गया था, और वो आंगनवाड़ी बहन कहने आई थी तो जाना है। अब जी। दूसरी तरफ है जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई कारण से, या तो जी। उन्होंने सुना है या उनको कोई वैक्सीन के कारण वो हुआ, तो जो एकदम ही अगेंस्ट है, जी। एकदम बिल्कुल। वो मोस्टली ऐसे लोग हैं जो एंटी साइंस में नहीं मानते, जी। वो जो साइंस में नहीं मानते वो कई वैक्सीन में भी नहीं मानते। वो जी। लोग जो है वो भी आप करो वो कन्विंस होने वाले। लेकिन जो ज्यादातर लोग बीच में हैं वो है, वो ऐसे लोग हैं जो जिनके कंसर्न है, जिनकी चिंताएं हैं। जी। उनको उनको आप अगर उनका जवाब दो, उनको एड्रेस करो, उनका आप उनको बताओ कि क्या है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल तैयार हो जाते हैं। और वो जो ये बीच में लोग हैं, वो जो है वो ऐसा नहीं है कि वो कई का हर वैक्सीन के लिए हो, किसी का पर्टिकुलर, जैसे आपने मीजल्स का नाम लिया। जी। अब मीजल्स और एमएमआर वगैरह जो है उसके लिए बहुत पुराना एक, क्योंकि यूके का किस्सा है कि एक गलत पेपर छपा था, जिसको जी। बाद में वो डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया कि उससे जी। ऑटिज्म होता है। अब जी। ये चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार मन में बैठ जाए ना तो वो कई सालों तक चलती रहती हैं। तो कई लोगों को एक जी। वो है। पोलियो जी। के लिए जब होता है, पोलियो के लिए वो भी देखिए मेन ये सब चीजें ज्यादा होती है कैंपेन्स में। जब वो जी। सरकार कैंपेन चलाती है ना, तब लोग एकदम से वो होते हैं, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में जो चलता है मोस्टली उसमें नहीं होती है। जी। तो ऐसा उसमें है कुछ लोग, लेकिन उसमें ज्यादातर बैरियर जो है वो, मतलब हेजिटेंसी के नहीं है। कई लोगों को टाइम सुटेबल नहीं है, कई लोगों को बुखार और इसका साइड इफेक्ट का डर लगता है, कई लोगों को नजदीक में नहीं है। तो पहले हमको वो देखना चाहिए। जी। दूसरे लोग जिनके कंसर्न है उनके कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए। और हेल्थ जी। केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, आंगनवाड़ी बहन है, नर्स है, वो सब लोगों को
एक अच्छी तरह से आना चाहिए कि वो कैसे उनके कंसर्न को एड्रेस करें। अगर जी आप उन कंसर्न का एड्रेस करेंगे, उनके क्या सवाल हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग तैयार हो जाते हैं। हर आदमी अपने बच्चे का भला चाहता है, जी और आप उनका जवाब दे दो तो तैयार हो जाते हैं। तो ये जी वैक्सीन हेजिटेंसी ऐसे नहीं है कि अभी वो कोविड के समय था, और वैक्सीन ईगरनेस भी थी। जी आपने हमने कभी नहीं देखा इतने बच्चों की लाइन लग गई थी जैसे खोला सरकार ने। जी तो माँ बाप ने ना बोला तो भी बच्चों ने बोला नहीं हमको तो लेंगे, हम तो एडोलेसेंट जो जो एज में खोला था कि हम तो जी लेंगे। तो जी दोनों तरफ से है, और हमको ये देखते रहना चाहिए क्या चल रहा है। अब जैसे जी पोलियो के लिए कुछ जो रिलीजियस ग्रुप में था कि ये भाई हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, तो जी वो हम मेरा तो पोलियो में काम है, तो हमने वहाँ जी देखा, उनको एड्रेस किया। दूसरी जी बात ये होती है कि जब आप बहुत ज्यादा फोर्स करते हो तो वो बोलते हैं कि हमारा कोई सिर्फ वैक्सीन नहीं है ना, हमारी दूसरी भी जरूरत है। तो पोलियो जी के समय हमने वहां पे सरकार ने वो आइडेंटिफाई करके वहां सब चीजों पे ध्यान दिया। तो जी ये एक बड़ा डायनेमिक वो है, और दोनों तरह के लोग हैं उसमें। जी और मेन चीज ये होती है कि जब कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, र्यूमर है, वो फैलता है, जी उसके कारण पूरे सब लोग एक वो हो जाते हैं। तो उसके सब आजकल तरीके हैं कि किस चीज में क्या करना चाहिए। तो जी इंडिया में वैक्सीन हेजिटेंसी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जी अभी भी एक्सेस के इशू हैं, अभी भी टाइमिंग के इशू हैं, और लोग ये जो उनके हिसाब से नहीं है, जो वर्कर हैं उनको इवनिंग में चाहिए। जी तो डिस्टेंस का इशू है, तो ये सब अभी भी इशू है। और कई जिसके जो कंसर्न है उनको हमको जवाब देना चाहिए। मेनली ऐसे मेजर नहीं है, AFI का है, बुखार और साइड इफेक्ट का है, और इस जी तरह के ज्यादा कारण है। अ, सर, अब जैसे बहुत सारे वैक्सीन्स अभी मैंडेटरी लिस्ट में, जैसे एक तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि बच्चों के लिए ये एक फिक्स वैक्सीनेशन स्केड्यूल है, पर ऐसी बहुत सारी वैक्सीनेशंस हैं जैसे आने वाले टाइम्स में भी आती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ पेरेंट टू बी अवेयर ऑफ दीज वैक्सीनेशंस? देखिए पहले, अब ये ज्यादा ज्यादा इतनी नहीं बची हैं जो जो अभी सरकार में ना हो। मोस्टली तो सरकार ने सब कुछ चालू कर दिया है, एंड वो जी बहुत बहुत अच्छी चीज है। तो जी वो उतना तो सब लेना ही चाहिए। उसके जी अलावा कुछ वैक्सीन अभी हैं जो देखिए सरकार का फर्ज होता है कि ज्यादातर लोगों को हम कैसे से कैसे सुरक्षित कर सके। जी और जो प्राइवेट सेक्टर में जहां हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा होता है कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल चाइल्ड है उसके जी लिए क्या बेस्ट है। जी वहां कॉस्ट का फैक्टर नहीं है। जी वहां पे ये है कि इसके लिए इसको ये चाहता है तो इसको सब क्या क्या अवेलेबल है। जी तो सरकार सरकार जैसे अभी अगर तय करे कि हमको 1 रुपए देना है तो कितने 1.4 बिलियन रुपीज हो जाएं लोगों को। तो जी सब देखना पड़ता है कि कैसे जो पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के जो बीमारियां हैं उनको कैसे जी हम कंट्रोल करें, उनको कैसे हम उसकी वैक्सीन दें। तो जी वैक्सीन तो सब अच्छी है, लेकिन जी जो सरकार में मोस्टली जो खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन अब सब कवर्ड है। जी मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादातर अब प्राइवेट में अलग से कोई बची नहीं है। और एक बात जी याद रखिए, जो सरकार में वैक्सीन दी जाती है, जो उनका कोल्ड चेन सिस्टम है जी बहुत ही रोबस्ट है। और जी वही कंपनी की दवा जो वैक्सीन है जो सरकार फ्री देती है, वो हम जी लोग को लेना पड़ता है। 3,000 4,000 की भी आती हैं, पर क्योंकि जी हमको पे करना पड़ता है। हाँ और जी। वही वही वैक्सीन जो है सरकार में फ्री में अवेलेबल है। और उनका जो ओके। वैक्सीनेटर है, हम अगर जी दिन में 10 वैक्सीन देते हैं, वो हर दिन के 50 देता होगा। तो ऐसा नहीं जी मानना चाहिए कि प्राइवेट में ज्यादा सुपीरियर है, और ना हमको जी ऐसे बोलना भी चाहिए। जी आपको जहाँ सुविधा है, आपका कंफर्ट लेवल है, मेन है वो एम्बियंस का है। आप वो जी हम थोड़ा उससे देंगे ज्यादा, बातें करेंगे, वो करेंगे, और वहां लाइन में लगना पड़ेगा। पर सब जी वैक्सीन कंपनी अच्छी ही हैं, और जी उसमें कोई शक नहीं है। और जो उनका कोल्ड चेन सिस्टम है, जो उनका जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही रोबस्ट है। now this is in context with the recent pandemic COVID-19. हम्म। Several experts, they have said that COVID-19 as a disease will never go away from our lives. And even today, हम कहते हैं कि पैंडेमिक बंद हो गया है, लेकिन अभी भी ये न्यूज आती रहती है कि नए वेरिएंट्स दे आर कमिंग अप. So, do you think going forward, COVID vaccine will also become a part of child vaccinations?
इंडिया में तो अभी तुरंत कोई प्लान नहीं है। जी इंडिया में नहीं है। जी इसका कारण है कि हर जगह की एपिडेमियोलॉजी देखी जाती है। हमारे यहाँ जब पैंडेमिक चल रहा था तो भी जी उसमें बच्चों में ऐसा नहीं था कि नहीं था, पर बहुत ही माइल्ड असर था। जी खासकर इसलिए फिर सरकार ने एक एज के बाद नीचे जाना अवॉइड किया, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि उसमें उसमें बढ़ रहा है या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहे हैं। तो जी अब आप बोले हैं तो जैसे अगर अभी कोविड एंड वो हो गया है कि भाई एक कभी नहीं जाएगा, मतलब ऐसे जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, वो भी जी चला आ रहा है, तो वेव्स ऐसे आती रहेंगी, लेकिन अभी जो भी आ रही हैं वो कोई ऐसी जी खतरनाक नहीं है। जी जब खतरनाक थी तब भी बच्चों में इतना ज्यादा असर नहीं था, तो अभी तो बिल्कुल ही मतलब कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। तो अभी तक ऐसा कोई वेरिएंट नहीं आया है तुरंत में कि जो जिसका हमको ये मिले। और हमने जी तो पैंडेमिक में हमारे यहाँ जो काम हुआ है बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही कमेंडेबल है कि हमने हर तरह की उस समय तैयारी जब कर ली। एक हमको खराब अनुभव हुआ डेल्टा वेव में, उसके जी बाद जो हमने तैयारी किया है टेस्टिंग का, ऑक्सीजन का, बेड्स का, अब सरकार जी ने सब जगह पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट चालू कर दिए हैं। तो अभी जी वी आर वेल प्रिपेयर्ड, और अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जी और ये तो चलता रहेगा। हमारे पास तो दोनों चीज है, नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन भी जो हमने यूज किया, वो दोनों से हमारी इम्यूनिटी तो बेस्ट है। और जी बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो अभी नए नए बूस्टर लेते जा रहे हैं, तो भी हमको यही सुनने मिलता है तो भी उनको कोविड हो रहा है। जी तो जो भी हम अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कोविड वैक्सीन वैक्सीनेशन में आएगी। उसके पहले अभी लाइन में बहुत है, और कोई जी ऐसा एविडेंस नहीं है जी कि कोविड के कारण हम बच्चों में अभी इतना वो हो रहा है, खासकर इंडिया में। वैक्सीन की जो अवेयरनेस है वो बच्चों की ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग को किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है? नहीं, देखिए, बच्चा अगर बीमार नहीं पड़ेगा, वैक्सीन दी गई है उसको, तो कई बीमारियों से बचेगा। ही विल जी बी ही विल नॉट फॉल इल, ही जी विल नॉट हैव स्कूल एब्सेंटिज्म। स्कूल जी में नहीं तो जो इतना एब्सेंट रहेगा। जी एक अच्छा पढ़ाई करके प्रोडक्टिव नागरिक बनेगा, इंडियन सिटीजन बनेगा, और पूरे उसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो जी ओवरऑल तो हर चीज में वैक्सीन के कारण इट्स ए ओवरऑल हेल्थ एंड एवरीथिंग इज विल बी डेफिनेटली गुड। if he is यस studying, he is healthy, he will have a good physical mental health. And यस so definitely vaccine is the one of the best investment we can make in our life. यस तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है गवर्नमेंट में लीजिए। जी अगर आपके इफ यू कैन अफोर्ड, तो जो नहीं है, टाइफाइड जी है, चिकन पॉक्स है, एमआर की जगह है, जो भी है वो भी लीजिए। जी और नहीं आएंगी तब देखिएगा क्या रिकमेंडेशन आता है। बहुत जी स्ट्रांग बॉडी अपने यहाँ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की है, जिसका जी मैं भी प्रेसिडेंट था, मेंबर रह चुका हूँ। तो जी जो रिकमेंडेशन आती हैं और वो उसके हिसाब से आगे जब आएंगी तो वो जी भी लीजिएगा। पर मोस्ट ऑफ द जो जो लोग गवर्नमेंट में ले रहे हैं वो ये खराब फील ना करें। मोस्ट जी ऑफ द जो खराब खराब जितनी भी बीमारियां हैं खतरनाक, सब उस मोस्ट ऑफ उस सब उसमें कवर है करीब करीब। Thank you so much, sir. We really appreciate your presence with us today. And I'm hoping that the information you've shared would be enlightening and valuable to many families. So thank you so much for joining us. It's थैंक really यू। been a pleasure. Thank थैंक्स। you, sir. प्लेजर इज Thank, माइन। थैंक यू। thank you, sir. And for more such informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates.